Assalamu alaikum, grade 7th. How are you all? I expect that you all are safe and sound. Grade 7, today we'll be working with our unit number 11. That is working for a better world. Now, unit number 11 is in your English book, that is on page number 58. And yes, take out your English books. Open the pen, page number 58. This is unit number 11, working for a better world. So this lesson is about two philanthropists. Philanthropists are the people who love human beings and who protect them from the hardships, right? So these are two people. One is Mother Teresa, and the second one is Nelson Mandela, right? And we will study about these two, that who were them and what were they doing, and what made them to work, what they made better in the world, right? But before anything else, I'm going to read this page with you, and you students, you must be placing your fingers on the book, and when I start reading, you also start reading it with me. So let's get started. Place your fingers on the text. Working for a better world. Imagine two young children, a girl and a boy, born about 100 years ago. The girl was born in Albania, and her real name was Agnes, which means holy in Greek. The boy was born in South Africa, and his middle name was Roli Lahla. Okay. Roli Lahla. Okay. Meaning troublemaker in Xhosa. He belonged to African Thembu tribe. I know the words are a bit hard for you, so let's work with the harder words. Agnes, Roli Lahla, Xhosa. Xhosa is this Xhosa. This is Xhosa, right? And Thembu tribe. Agnes became a nun with the name Sister Teresa, later Mother Teresa. Mother Teresa and Nelson Mandela were two great humanitarians. Humanitarian is a person who fights injustice and works for the happiness of others. Mother Teresa fought against poverty. Nelson Mandela fought against apartheid and racist political system in which the white people kept all the power and wealth for themselves. Mandela was jailed from 1962 to 1990 for his campaign. People worldwide admire these two great heroes. Both were awarded the Nobel Peace Prize for their work for peace and justice. Mother Teresa facts. Mother Teresa was born on 26 August 1910 in Albania. She left Albania at 18 to come to Ireland. Mother Teresa joined the Loreto nuns in Dublin, travelled to Kolkata in India 1929, worked as a teacher and helped the poor, set up the Missionaries of Charity in 1950, lived with the poor in Kolkata, was awarded a Nobel Peace Prize in 1979, died on 5 September 1997. Nelson Mandela facts. Mandela was born on 18 July 1918 in South Africa. He became a lawyer and a politician. He was a boxer and a marathon runner in college. He fought against apartheid.
joined the African National Congress in 1944. He was imprisoned and received one letter and one visitor every 6 months. He was elected President of South Africa at the age of 75. He was awarded with the Nobel Peace Prize in 1993. Okay, students, this was all about the reading, and now we will come to the explanation. And the topic means working for a better world. Working for a better world means to make world a better place. जीने के लिए दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना. सो वर्किंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड मीन्स दुनिया को एक अच्छी जगह बनाने के लिए काम करना. इमेजिन 2 यंग चिल्ड्रन. इमेजिन, सोचे अपने जहन में 2 बच्चों के बारे में, 2 जवान बच्चों के बारे में, छोटे बच्चों के बारे में. अ गर्ल एंड अ बॉय, एक लड़का और एक लड़की. born about 100 years ago, जो कि पैदा हुए थे तकरीबन आज से 100 साल पहले. The girl was born in Albania. लड़की जो है वो पैदा हुई है अल्बानिया में. ठीक है, अल्बानिया इज़ अ यूरोपियन स्मॉल कंट्री. इट इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री. ओके, एंड हर रियल नेम वॉज एग्नेस. और उसका जो अपना नाम था बचपन में जो रखा गया था, दैट वॉज एग्नेस, विच मीन्स होली इन ग्रीक, जिसका ग्रीक ज़ुबान में मतलब है, ग्रीस की जो ज़ुबान है वहाँ में एग्नेस का मतलब है होली. होली बेटा कहते हैं कोई चीज़ जब प्योर हो, डिवाइन हो, स्पिरिचुअल हो, बहुत ही साफ़ हो और जिसमें अच्छाई हो, उसको होली कहते हैं. तो एग्नेस का मतलब है होली. द बॉय वॉज बॉर्न इन साउथ अफ्रीका. लड़का जो है वो पैदा होता है साउथ अफ्रीका में. एंड हिज मिडिल नेम वॉज रोली लाला. और उसका जो मिडिल नेम है, एक हमारे पास नेम जो होते हैं उसके 3 सेक्शंस होते हैं. अच्छा, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम. ठीक है, तो नेल्सन मंडेला का पूरा फर्स्ट नेम नेल्सन मंडेला का था नेल्सन. मिडिल नेम उसका था रोली लाला. एंड जो उसका लास्ट नेम था दैट वाज मंडेला. तो नेल्सन रोली लाला मंडेला. ठीक है, उसका जो मिडिल नेम था वो रोली लाला था, मीनिंग जिसका मतलब था ट्रबल मेकर, मुश्किलात बनाने वाला. इन कौसा ज़ुबान में, कौसा ज़ुबान कौन सी है, जो अफ्रीका, जिम्बाब्वे जो है साउथ अफ्रीका में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको कौसा बोलते हैं. ठीक है, जैसे पाकिस्तान में उर्दू है, अफ़गानिस्तान में पश्तो है, इंडिया में हिंदी है. इसी तरह साउथ अफ्रीका और जो जिम्बाब्वे है वहाँ पे कौसा लैंग्वेज बोली जाती है. रोली लाला का मतलब था कौसा. रोली लाला का मतलब था ट्रबल मेकर, मुश्किलात बनाने वाला. और ये नेल्सन मंडेला का मिडिल नेम था. ही बिलोंग्ड टू अफ्रीकन थेम्बू ट्राइब. ही बिलोंग्ड, उसका ताल्लुक था, बिलोंग मीन्स ताल्लुक, टू अफ्रीकन थेम्बू ट्राइब, अफ्रीका के एक कबीले से जिसको थेम्बू कहा जाता है. you know the old system of Africa is basically dealing with the system of tribes. जो लोग पुराने ज़माने में रहते थे, लोगों के पहले कबीले हुआ करते थे, ज़ात पात का बड़ा एक सही सिस्टम हुआ करता था पहले. अब इतना नहीं है. राइट नाउ दिस इज़ द टाइम ऑफ इक्वालिटी, हर कोई इक्वल है. बट past in the times there were tribes, there were caste system. इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लिया जाता था. तो जिस कबीले से, जिस ट्राइब से नेल्सन मंडेला का ताल्लुक़ है, दैट वाज थेम्बू ट्राइब. और हर एक ट्राइब का अपना एक स्पेसिफिक कल्चर होता है, वो उनके अपने रूल्स होते हैं, अपने रेगुलेशंस होते हैं जो कि बाकी ट्राइब्स या बाकी कबीलों से अलग होते हैं. इट इज़ लाइक अ ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, जैसे यहाँ पे अफरीदीज़ हैं, फिर कुछ खान हैं, तो कुछ
आई डोंट नो मोर, सो थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो वो थेम्बू ट्राइब से था। एग्नेस बिकेम अ नन, ये जो एग्नेस थी, ठीक है, वो एक नन बन गई। नन मीन्स वो औरत जो कि ख़ुद को कम्प्लीटली तौर पे रिलीजन के हवाले कर दे और वो शादी भी ना करे, वो जॉब एंड एवरीथिंग, शी डजंट डू एनीथिंग एट ऑल। व्हाट शी डज इज़ कि वो फुल टाइम जो है वो अपने रिलीजन को फॉलो करती हैं और लोगों को मोटिवेट करती हैं कि आप भी रिलीजन को फॉलो करें। तो एग्नेस जो थी, शी बिकेम अ नन, ठीक है, विद द नेम सिस्टर टेरेसा। अच्छा, जब क्रिश्चियनिटी में कोई नन बन जाता है, कोई औरत जो है वो ख़ुद को रिलीजन के हवाले कर देती है, तो उसको फिर सिस्टर कहते हैं, राइट। सो आफ्टर बिकमिंग अ नन, एग्नेस को दूसरा नाम दिया गया जिसको कहा जाता है सिस्टर टेरेसा। शी वॉज देन कॉल्ड सिस्टर टेरेसा, लेटर मदर टेरेसा। और बाद में उन्होंने इंसानियत की जितनी भी खिदमत की, तो लेटर उसके बाद शी वॉज नेम्ड एज मदर टेरेसा, फिर उनको मदर टेरेसा कहा जाने लगा, ठीक है। मदर टेरेसा एंड नेल्सन मंडेला वर टू ग्रेट ह्यूमैनिटेरियंस। मदर टेरेसा और नेल्सन मंडेला, ये दोनों जो थे, ये खिदमत खल्क करते थे। खिदमत खल्क करने वाले को ह्यूमैनिटेरियन कहा जाता है। ह्यूमैनिटेरियन होते हैं फिलंथ्रोपिस्ट या फिलंथ्रोपिस्ट होते हैं वो, और इंसानियत की खिदमत करते हैं, इंसानों की खिदमत करते हैं, मुश्किलात से निजात दिलाते हैं उन्हें, और मैनी अदर थिंग्स। सो नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, दे बोथ वर लविंग ह्यूमैनिटी, इंसानों को बहुत प्यार करते थे, इंसानियत की खिदमत के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। अ ह्यूमैनिटेरियन इज़ अ पर्सन, ह्यूमैनिटेरियन वो शख्स होता है हु फाइट्स, जो कि लड़ता है, इनजस्टिस, नाइंसाफ़ी के साथ, एंड वर्क्स फॉर, और वो काम करता है, फॉर द हैप्पीनेस ऑफ अदर्स, बाकी लोगों की खुशियों के लिए। तो ह्यूमैनिटेरियन इज़ दैट पर्सन हु crosses all the wrongs on the human beings and who gives happiness to other people। वो लोग जो कि लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होने को रोकते हैं और खुशियाँ बांटते हैं लोगों में। मदर टेरेसा फॉट अगेंस्ट पावर्टी। अब मदर टेरेसा ने क्या किया था ह्यूमैनिटेरियन बनने के लिए? शी फॉट अगेंस्ट पावर्टी, उन्होंने गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। फॉट मीन्स लड़ना, अगेंस्ट खिलाफ, पावर्टी गुर्बत, उन्होंने गुर्बत के ख़िलाफ़ जंग लड़ी। नेल्सन मंडेला फॉट अगेंस्ट अपार्थाइड। नेल्सन मंडेला जो थे वो अपार्थाइड के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग शुरू की थी। अपार्थाइड अब क्या होता है? बैक इन द डेज़, आज से तकरीबन 50-60 साल पहले कह लें, 100 साल पहले कह लें, तकरीबन आज भी ये थोड़ी थोड़ी चीज़ है कि जो वाइट पीपल होते हैं, अंग्रेज़ होते हैं, तो ये एक्चुअल में जब इंग्लैंड जो था, ये जब रूल कर रहा था आधी से ज़्यादा दुनिया पर, तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सारी पावर अपने पास रखी थी, ओके। एंड बाकी जो दुनिया के जितने भी लोग थे, जैसे बरसगीर पाक व हिंद के लोग, हम लोग जो हैं, अफ्रीका के लोग, कॉन्गो, इन लोगों को उन्होंने दबा के रखा था। और फिर इस हिसाब से उनको उनके रंग के बेसिस पे, उनके जो कलर, उस बेसिस पे उनके साथ फ़र्क किया जाने लगा, तज़ाद किया जाने लगा, जिसको हम तज़ाद कहते हैं उर्दू में, और एक दूसरा वर्ड भी है, आई फॉरगॉट इट कम्प्लीटली, याद आ जाए तो बता दूँगी। तो अपार्थाइड जो है वो कहते हैं कि जब वाइट पीपल या जो अंग्रेज़ हैं वो पावर छीन लें और सारी चीज़ें, सारी हुकूमत, सारी पावर, सारा राज, सब कुछ छीन ले बाकी लोगों से और वो सब कुछ अपने लिए रख लें। और बेसिकली ऐसा उन्होंने पास्ट में, हिस्ट्री में किया भी है, पाकिस्तान, इंडिया के साथ भी किया है, आधे से ज़्यादा दुनिया के साथ ये कर चुके हैं ऑलरेडी। उन पर हुकूमत की है उन्होंने, बहुत सारी चीज़ें, हुकूमतें, सब कुछ छीन के चले गए हैं। तो इसी को अपार्थाइड कहा जाता है कि जब आप कोई ऐसा
राज कायम करें, ऐसी हुकूमत कायम करें, ऐसा गवर्नमेंट कायम करें जिसमें सब कुछ जो है वो जो अच्छी चीज़ें हैं वो वाइट पीपल के हिस्से में आ जाए, और जो गुर्बत और जो मुश्किलात है वो उनको बाकी के लोगों के लिए छोड़ दी जाए। तो उस सिस्टम को अपार्थाइड कहा जाता है। तो नेल्सन मंडेला ने इसके ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी, बिकॉज़ ब्लैक पीपल जो हैं, जिनको हम नीग्रोज़ कहते हैं, या जो नेल्सन मंडेला जैसे जो लोग हैं, इनके साथ बड़ा ही तज़ाद वाला ताल्लुक़ रहा है पूरी दुनिया का। इनके रंग की वजह से, इनकी शक्ल सूरत की वजह से कह ले, आज भी हो रहा है, नहीं होना चाहिए, इंसान है वो भी। तो नेल्सन मंडेला ने इस चीज़ के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी कि किसी के ज़ात पात, किसी के रंग और नस्ल की बेसिस पे फ़र्क नहीं होना चाहिए। राइट, आगे आ जाते हैं। अपार्थाइड क्या होता है? अपार्थाइड इज़ अ रेसिस्ट पॉलिटिकल सिस्टम। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम या ऐसी पॉलिटिक्स या ऐसी गवर्नमेंट जिसमें रेसेस के हिसाब से लोगों को ट्रीट किया जाए, उनके ज़ात पात के हवाले से लोगों को ट्रीट किया जाए। ठीक है, इन विच, जिसमें वाइट पीपल केप्ट ऑल द पावर, जिसमें जो अंग्रेज़ हैं, वाइट पीपल हैं, वो सारी ताकत अपने पास रखते हैं, एंड वेल्थ, और वो सारी जो दौलत है वो भी अपने पास रखते हैं फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए ही वो रखते हैं, और बाकी जो ब्राउन पीपल हैं या जो ब्लैक हैं उनको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। इस सिलसिले में नेल्सन मंडेला ने बहुत काम किया है। आप ऐसे कह लें कि उन्होंने ब्लैक पीपल को दुनिया में इक्वल जगह देने के लिए आवाज़ उठाई थी। मंडेला वॉज जेल्ड, मंडेला जो है उनको कैद किया गया था, उनको जेल में रखा गया था फ्रॉम 1962 टू 1990, 1962 से 1990 तक के दौरानिए में। राइट, तकरीबन ये 27 साल का अरसा था। फॉर हिज कैंपेन, उसने जो सिलसिला, जो उसने जो मूवमेंट शुरू की थी नेल्सन मंडेला, उन्होंने जो अपना एक जो लड़ाई जो उन्होंने शुरू की थी, या ब्लैक पीपल को जगाने के लिए कि तुम भी इक्वल इंसान हो, बाकी इंसानों की तरह, तुम्हें भी जीने का उस तरह से हक है जिस तरह बाकी इंसानों का है। तो इस सिलसिले में उनको जेल में भी बंद किया गया था, क्योंकि जहाँ पे नेल्सन मंडेला रहते थे उस टाइम दौरी हुकूमत जो था वहाँ पे अंग्रेज़ों का था, और वो अंग्रेज़ों की हुकूमत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ही आवाज़ उठा रहा था। सो दैट्स व्हाई ही वाज जेल्ड। राइट, ओके, पीपल वर्ल्ड वाइड एडमायर दीज टू ग्रेट हीरोज़। लोग जो है वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया भर में एडमायर, अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ़ करते हैं दीज टू ग्रेट हीरोज़, इन दो ग्रेट हीरोज़ का। हीरोज़, हु आर हीरोज़? हीरोज़ इज़ अ पर्सन हु डज़ गुड थिंग्स, जो कि एक अच्छा इंसान होता है, जिसको बाकी लोग सराहते हैं, जिनको बाकी लोग पसंद करते हैं, और वो अच्छे काम करते हैं हमेशा। एंड हु डज़ द राइट थिंग्स, जो कि अच्छी सही चीज़ें करते हैं, हमेशा सच का साथ देते हैं। सो दीज आर कॉल्ड हीरोज़। मूवी वाला हीरो इज़ ऑल्सो अ हीरो, बिकॉज इन द मूवी दैट डिड ऑल द गुड थिंग्स। मूवी में हीरो वही होता है जो कि अच्छे काम करता है, सही का साथ देता है। सो दीज टू आर हीरोज़, ये भी हीरोज़ हैं, मूवी वाले तो नहीं, ये रियल लाइफ हीरोज़ हैं। लोग इनको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, सराहते हैं। बोथ वर अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज़। इन दोनों को नोबल पीस प्राइज़ मिला था। ठीक है, नोबल पीस प्राइज़ जो है, नोबल पीस प्राइज़, ये एक अवार्ड सिस्टम है दुनिया भर के लिए, जिसमें जिस मुल्क का भी बाशिंदा इंसानियत की खिदमत करता है, अच्छे काम करता है, एक बड़े लेवल पर या एक छोटे से लेवल पे भी हो, और वो दुनिया में अमन कायम करने की कोशिश करता है, तो उनको ये प्राइज़ मिलता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रेस्टीजियस अवार्ड्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में बड़े एजाज़ात में से एक एजाज़ है ये कि किसी को नोबल प्राइज़ मिले। अगर आप जानते हो तो पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल सलाम एंड मिस मलाला, जो कि सवात से ही हैं, ये दोनों नोबल पीस प्राइज़ होल्डर्स हैं। एंड मलाला, डॉक्टर अब्दुल सलाम का तो मुझे, अब्दुल सलाम कुछ यही नाम था, आई गेस, मे बी, उनके बारे में मुझे कुछ क्लियर आइडिया नहीं है कि वाई ही वॉज अवॉर्डेड। लेकिन मलाला का मुझे आइडिया है, बिकॉज शी वॉज फाइटिंग फॉर द एजुकेशन ऑफ यंग गर्ल्स।
लड़कियों के एजुकेशन के लिए उसने आवाज़ उठाई थी, एंड हैंस शी वाज अवॉर्डेड विद द नोबेल पीस प्राइज़। तो जो इंसान जो है वो इंसानियत की खिदमत करता है, and he speaks for the humanity and he tries to maintain the peace in the world, तो उस इंसान को नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाता है। ओके, एंड आई एम के आप लोग भी बड़े होकर इतने अच्छे काम करें, इतने पीसफुल एक्ट्स करें, अच्छे इंसान बने, दूसरों के लिए रोल मॉडल बने, तो इंशाअल्लाह अल्लाह करे कि आपको भी ये चीज़ नहीं, ये एजाज़ जो है ये नसीब हो। फॉर देयर वर्क फॉर पीस एंड जस्टिस, नोबेल पीस प्राइज़ उनको मिला किस खुशी में? क्योंकि उन्होंने उनका जो काम था इंसानियत की खिदमत के लिए। फॉर पीस, उन्होंने दुनिया में अमन पैदा करने की कोशिश की, एंड जस्टिस मीन्स उन्होंने इंसाफ करने की कोशिश की लोगों के साथ, राइट। नाउ कमिंग टू द मदर टेरेसा फैक्ट्स। मदर टेरेसा के बारे में कुछ अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। शी वॉज बॉर्न इन 26 अगस्त 1910 इन अल्बानिया। वो अल्बानिया एक कंट्री है यूरोप में, वहाँ पे वो 1910 तकरीबन आज से 110 साल पहले 26 अगस्त को पैदा हुई थी। लेफ्ट अल्बानिया एट 18 टू कम टू आयरलैंड। फिर उन्होंने 18 साल की उम्र में उन्होंने अल्बानिया छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने आयरलैंड जाना था, ठीक है। जॉइंड द लोरेटो नन्स इन डबलिन। अब डबलिन जो है आयरलैंड का जो कैपिटल है, ठीक है, वहाँ पे एक ग्रुप है लोरेटो, ठीक है। लोरेटो जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसमें लोग जो है इंसानियत की खिदमत के लिए काम करते हैं। तो लोरेटो में एक नन्स का एक ग्रुप होता था, फीमेल प्रीस्ट जो होती हैं या जो रिलीजन्स डिवोटेड फीमेल्स होती हैं, उनका एक ग्रुप था जो कि इंसानियत की खिदमत के लिए काम करती थी। तो जब ये आयरलैंड गई मदर टेरेसा, तो शी जॉइंड दैट लोरेटो नन्स इन डबलिन, राइट। ट्रैवल टू कोलकाता इन इंडिया इन 1929। फिर वो इंडिया आई, कोलकाता, ठीक है। कोलकाता इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा स्टेट है आप कह लें, और इट इज़ इन इंडिया। एंड 1929 में मदर टेरेसा डबलिन से जो लोरेटो का ग्रुप था उनको छोड़ के 1929 में वो कोलकाता आई, इंडिया आई। वर्कड एज टीचर एंड हेल्प द पुअर। वो फिर एक टीचर के तौर पर वहाँ पे काम करने लगी, उस्तानी के तौर पर, एंड हेल्प द पुअर, और वहाँ पे उन्होंने गरीब लोगों की मदद करना शुरू की। बिकॉज द टाइम 1929 एंड आफ्टरवर्ड्स इंडिया बरसगीर पाक व हिंद था, तब पाकिस्तान इंडिया एक ही थे, एंड दैट टाइम वाज क्वाइट अ पुअर टाइम फॉर दिस स्टेट। ये वो ज़माना जो था वो तब यहाँ के लोगों के लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि लिटरली जो अंग्रेज़ों की रॉयल फैमिली जो थी वो लूट लिया था उन्होंने सब कुछ, और गुर्बत ही गुर्बत रह गई थी यहाँ पे, राइट। और पहले से ही मतलब एक इस्टेब्लिश सिस्टम था, सिंपल सा, सादा सा, तो गरीब कहा जाने लगा उन्हें। तो वहाँ पे वो गरीबों की मदद करने लगी। सेट अप द मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन 1950। मिशनरीज़ क्या होता है? मिशनरीज़ होते हैं जब कोई भी क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड कोई लीडर होता है और वो कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दे जिसमें लोगों की खिदमत की जाती है, उसको मिशनरी कहते हैं, ठीक है। मिशनरी इसीलिए कहते हैं बिकॉज दे कैरी अ मिशन फॉर ह्यूमैनिटी। इंसानियत की खिदमत के लिए वो एक मिशन कैरी करते हैं। तो इन्होंने जो है मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी बनाई, यानी जो चैरिटी होती है जिसको खैरात इज़ जो, हाँ, खैरात ही कह लें, खैराती इदारे बनाए उन्होंने गरीब लोगों के लिए, जहाँ से उनको खैरात वसूल होती थी उनके लाइवलीहुड के लिए। ऑफ चैरिटीज़ इन 1950। अच्छा, 1950 तकरीबन 21 साल बाद, वहाँ पे जाने के 21 साल बाद उधर ही कोलकाता में ही उन्होंने मिशनरीज़ ऑफ चैरिटीज़ बनाए जहाँ पे लोगों को खैरात मिला करती थी। लिव्ड विद पुअर इन कोलकाता। मदर टेरेसा जो थी वो कोलकाता में ही रह के गरीबों के साथ ही रहती थी। वॉज अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज़ इन 1979।
1979 में फिर उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला, राइट, एंड डाइड ऑन 5 सितंबर 1997। फिर 5 सितंबर 1997 को वो हमसे जुदा हो गई। नेल्सन मंडेला फैक्ट्स की तरफ आते हैं। नेल्सन मंडेला फैक्ट्स was born on 18 July 1918 in South Africa। नेल्सन रोलीलाला मंडेला जो है वो 1918 में पैदा हुए थे, तकरीबन आज से 102 साल पहले, 18 जुलाई को। became a lawyer and a politician। वो वकील बने, लॉयर, एंड अ पॉलिटिशियन, वो एक what is a politician called in Urdu? Think about it, I forgot it। अच्छा मैं भूल गई, I'm sorry, you can think about it or you can ask your parents, क्योंकि जब मुझे याद आएगा ये वीडियोस ख़त्म हो गई होगी। पॉलिटिशियन, अ पर्सन हु वर्क्स इन पॉलिटिक्स, वो इंसान जो कि पॉलिटिक्स में हो, ठीक है। वॉज अ बॉक्सर एंड अ मैराथन रनर इन कॉलेज। अपने कॉलेज के ज़माने में वो बॉक्सिंग करते थे। ही वॉज अ बॉक्सर, यू नो, पंचिंग द अदर पीपल फेस, and a marathon runner। Marathon runner, basically it's a kind of race where people run। So this proves that Nelson Mandela was an athlete, sports खेलते थे वो बहुत। fought against apartheid। फिर उन्होंने जो वाइट पीपल की जो डोमिनेंसी थी, अंग्रेज़ जो बाकी लोगों पर ख़ुद को फ़ायदा पहुंचाते थे, तो इसके ख़िलाफ़ उन्होंने जंग की। जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC इन 1944। फिर उन्होंने जब पॉलिटिक्स में कदम रखा 1944 में, ठीक है, तो उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, राइट, उन्होंने ये पार्टी ज्वाइन की और वो इसी तरह पॉलिटिक्स में आ गए। वॉज इम्प्रिजन्ड एंड रिसीव्ड 1 लेटर एंड 1 विजिटर एवरी 6 months। फिर उनको वो जो आवाज़ उठा रहे थे वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तज़ाद के ख़िलाफ़, नस्ली तज़ाद के ख़िलाफ़, उसी दौरान उनको अंग्रेज़ों ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया था। ही वॉज इम्प्रिजन, जेल में बंद करना, एंड रिसीव्ड 1 लेटर, और उनको 6 महीनों के अरसे में एक ख़त अलाउड था मिलना, और एक शख्स से वो मिलते थे हर 6 महीने के अरसे के दौरान। यूजुअली इट इज़ नॉट लाइक दैट। जब कोई जेल में होता है तो उनको कभी भी ख़त दिए जा सकते हैं, या उनको कभी भी वो किया जा सकता है, उनको कभी भी, यू कैन रीच देम एनी टाइम, कभी भी जाके मिल लें। बट नेल्सन मंडेला वाज सो स्ट्रिक्टली इम्प्रिजन्ड, उनको जेल में इतना सख्त तरीके से बंद किया गया कि 6 महीने में सिर्फ एक ख़त और एक बंदा उनसे मिलने आता था। was elected president of South Africa at the age of 75। आखिरकार जब उनकी स्ट्रगल्स रंग लेके आई तो वो पॉलिटिक्स में फिर से खड़े हुए, और जो पब्लिक थी तो उन्होंने उनको इलेक्ट किया, यानी सिलेक्ट किया प्रेसिडेंट बनने के लिए। वो सदर बने साउथ अफ्रीका के जब वो 75 साल के थे, यानी 75 ईयर्स के थे। ही वॉज अवॉर्डेड विद नोबेल पीस प्राइज़ इन 1993। उनको फिर नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिला 1993 में, राइट। So this is all about it, grade 7, and this was a very good and very inspirational unit, because you learn about that how people work for other humans। इसमें आपने सीखा कि किस तरह से लोग जो हैं इंसानियत की खिदमत करते हैं, इंसानियत के लिए आवाज़ उठाते हैं, किस तरह से वो दूसरी लोगों की तकलीफ़ों और परेशानियों को दूर करते हैं। इवन उनको ख़ुद भी परेशानियां हो जाती हैं, कोई जेल में बंद हो जाता है, कोई गरीबों के साथ रहने पर मजबूर होता है, स्टिल इतना कुछ होने के बावजूद फिर भी वो अपने मकसद पर कायम व दायम रहते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, राइट। तो वी एम दैट वी बिकम लाइक देम, एंड वन डे वी ऑल्सो चेंज द वर्ल्ड फॉर द गुड। एक दिन हम भी दुनिया में कोई ऐसा चेंज कर सकें, कोई ऐसा बदलाव ला सके जो कि लोगों की अच्छाई के लिए हो, बिना ये सोचे समझे कि ये मेरे अपने लोग हैं या नहीं हैं, ठीक है। हर किसी के लिए पॉजिटिव चेंज फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए हम आवाज़ उठा सकें, हर किसी के लिए हम लड़ सकें, राइट। एंड दैट्स द मोटो ऑफ़ योर एजुकेशन। आप पढ़ते हैं, आप एजुकेशन हासिल करते हैं, वो भी इसीलिए ही करते हैं ताकि आप पढ़ लिख के उन लोगों की मदद करें, उन लोगों का
हाथ दें या उन लोग का साथ दे सकें जो कि बहुत पीछे हैं या जो खुद नहीं चल सकते. Okay, so that's it. Grade 7. Coming to the word meanings, holy, divine, sacred, pure. Holy जो होता है प्योर चीज़ को कहते हैं जिसमें कोई बुराई नहीं होती. Trouble maker, a person who causes issue. Trouble maker का मतलब है वो इंसान जो कि मसले बनाता हो. कौसा, लैंग्वेज ऑफ साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ये जो है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की ज़ुबान है, वहाँ पे बोली जाती है और इसको कौसा कहते हैं. ठीक है. नन, फीमेल डिवोटेड टू रिलीजियस एक्टिविटीज़. वो औरत जो कि उसने अपने आप को रिलीजन के हवाले कर दिया हो. ठीक है. ह्यूमैनिटेरियंस, पर्सन हु वैल्यू ह्यूमन लाइव्स. वो लोग जो कि इंसानों की जानों की इज़्ज़त करते हैं या कदर करते हैं इंसानियत की, और वो उनको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, उनको हर किस्म की तकलीफ़, हर किस्म की परेशानी से बचाते हैं. वो ह्यूमैनिटेरियन होते हैं. इनजस्टिस, रॉन्ग एंड अनफेयर, नाइंसाफ़ी. अपार्थीड, रेसिज्म, जब नस्ली तजाद हो जो. पॉलिटिकल सिस्टम, नेटवर्क ऑफ पॉलिटिक्स. पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो पॉलिटिक्स का जो अपना एक सिस्टम होता है उसको. ओके, आई स्टिल डोंट रिमेंबर व्हाट इज़ पॉलिटिक्स कॉल्ड इन उर्दू. आई नो द वर्ड डेफिनेटली बट आई कांट रिमेंबर इट राइट नाउ, सो यू मे आस्क इट. अच्छा. कैंपेन, मोमेंट, मिशन. कैंपेन जब आप एक कोई मोमेंट या मिशन चला रहे हो उसको कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई मकसद है और आप उस मकसद को हासिल करने के लिए सोसाइटी में बाकी लोगों को भी जगाएं. राइट. सो दिस इज़ कॉल्ड अ कैंपेन. वर्ल्ड वाइड, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में. एडमायर, अप्रिशिएट, सराहना, पसंद करना. हीरोज़, आइडल, जो मखसूस लोग होते हैं जिनको देख के लोग इंस्पायर होते हैं कि मैंने भी इनकी तरह कुछ करना है. लोरेटो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. लोरेटो जो है ये एक खिदमत खल्क के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई होती है जो कि अपनी एनर्जीज़ और पैसा दोनों ही लोगों के फ़ायदे के लिए खर्च करते हैं. मिशनरीज़, ग्रुप सेटल फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीपल. मिशनरीज़ बेटा ये एक ऐसे ग्रुप या ऐसा सिस्टम होता है जिसको बनाया जाता है लोगों की खिदमत के लिए. इम्प्रिजन्ड, क्लोज्ड इन अ प्रिजन. इम्प्रिजन मतलब जेल में बंद करना. इलेक्टेड, सिलेक्टेड बाय पब्लिक. इलेक्शन के ज़रिए जब हम किसी को इलेक्ट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम आवाम जो है वो उस मखसूस शख्स को सिलेक्ट कर रही है अपना हुक्मरान बनाने के लिए, जैसे कि वोट्स वगैरह में होता है. दैट्स इट ग्रेड 7. आई होप यू एंजॉय. टिल द नेक्स्ट वर्ड लेसन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, बी अ ह्यूमैनिटेरियन. इतने बड़े बड़े काम अगर आप नहीं कर सकते, छोटे छोटे काम करें. किसी को पानी का गिलास दे दें, किसी गरीब की 10 रुपये के ज़रिए मदद करें. बड़े बड़े कामों की शुरुआत छोटे छोटे कामों से ही होती है. अब्दुल सत्तार ईदी जो थे वो शुरू से इतने बड़े ह्यूमैनिटेरियन नहीं थे. जब वो बच्चे थे तो वो 2 रुपये स्कूल लेके जाते थे और 2 में से जो एक सिक्का होता था वो किसी और गरीब को देते थे. छोटे छोटे काम करें ताकि बड़े हो के आप बड़े काम कर सकें. ठीक है. एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली. प्लीज़ डोंट गो आउट, वॉश योर हैंड्स प्रॉपर्ली एंड स्टे सेफ. अल्लाह हाफिज़.